Hello student, today I will explain you the chapter 5th, Shelley and the Little Plant, from the book Brick by Brick. Okay, in this chapter you will read something new about how to face the challenging task in your daily life. Okay, so in the starting I am beginning the chapter. Listen to me carefully. Are you very shy, or do you have a particular subject that is challenging for you, or do you want to excel in a particular sport but don't know how? Life is full of daily challenges. In fact, challenges are what make our life interesting, and overcoming them makes us stronger. We need to learn to take discomfort in our stride when faced with a challenging situation. When things aren't going the way you want, get back to your feet and make things happen. Read this story that teaches us to stand right back up. Life is full of daily challenges. Life daily challenges से full है, and challenges are what make our life interesting and overcoming. Challenges हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ओके, सो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उनसे दूर होना चाहिए. ओके, so I am starting this from first paragraph. There was an air of excitement in the classroom. It was an important day in the class when each student would be assigned a job for which they would be responsible for the first semester. As the teacher handed out the task, children were eager to get the ones which were most interesting. Each student got a different responsibility: looking after the blackboard, writing thought and details of class on it. Someone had to keep track of the timing, someone was in charge of the switching on and off of lights, and someone else got the opportunity to be cleanliness perfect. बच्चों, ये एक स्टोरी है, एक स्कूल की स्टोरी है एंड एक क्लासरूम की स्टोरी है, जिसमें हर एक स्टूडेंट को एक जॉब असाइन किया हुआ था. हर एक स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जैसे कि लुकिंग आफ्टर द ब्लैकबोर्ड को देखना, मीन उसको डेकोरेट करना, राइटिंग द थॉट एंड डिटेल्स ऑफ क्लास ऑन इट, क्लास के बारे में डिटेल्स लिखना. समवन हैड टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइमिंग ट्रैक करना, मीन टाइमिंग के अकॉर्डिंग वर्क करना. समवन वॉज इन चार्ज ऑफ द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ लाइट्स. किसी को लाइट्स ऑन एंड ऑफ करने का, स्विच ऑन एंड ऑफ करने का जॉब मिला हुआ था. एंड समवन एल्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी क्लीनलीनेस परफेक्ट. और किसी को क्लीनलीनेस मीन क्लासरूम में सफाई है या नहीं है, उस पर ध्यान देना था. ओके, एंड Shelley too looked forward to being given a responsibility she would love to discharge. She loved reading, so looking after the class cupboard of books was something she would like to do. And Shelley एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जिसको इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना लगाव नहीं था. शी लव्ड रीडिंग, उसको बुक रीडिंग करना पसंद था, और वो बुक्स का वो चाहती थी कि वो उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जिसमें उसको बुक्स वगैरह देखने का चांस मिले, मतलब न्यू बुक्स. ओके, बट देन केम द बिग सरप्राइज. शी रिसीव्ड अ जॉब दैट लेफ्ट हर डिसअपॉइंटेड. शी हैड टू टेक केयर ऑफ अ सिंगल प्लांट द क्लास हैड. It was a small plant in a round glass jar, rooted in the mud inside it. It always stood on the windowsill. लेकिन एक सरप्राइज मिलता है, उसको एक जॉब मिलती है. एक क्लासरूम में एक विंडो पर एक प्लांट, छोटा स्मॉल प्लांट था, उसको उसकी केयर करने का जॉब मिलता है. ओके, बट शैली वॉज डिसअपॉइंटेड ऑफ विद हर जॉब. बट शैली इस बात से डिसअपॉइंट थी क्योंकि वो उसको नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको कुछ और करना पसंद था. सो शैली के फ्रेंड जो होते हैं, मैनी ऑफ शैलीज फ्रेंड्स सिंपथाइज्ड विद हर एंड टोल्ड हर दैट शी हैड बीन गिवन अ रॉ डील. सो वो एक बहुत ही छोटा सा वर्क करता था उसके लिए, कि पौधे को पानी देना है उसे डेली, मीन उसकी देखभाल करनी है. तो सब बच्चे सोच रहे थे कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, और वो बोल रहे थे उससे कि तुम इस बारे में बात करो टीचर से. You must speak about this, they advised her. Have a word with the teacher.
said one of them, you deserve something better, advised another. So वो लोग उसको एडवाइस करते हैं कि तुम टीचर से कहो. बट Shelley decided not to pay attention to any of these observations. She decided to accept the task given to her and do it well. उसने उस टास्क को करने का डिसाइड किया. I will make this worthwhile, she thought to herself. वो उसको कहती है कि मैं इसको जितना हो सकेगा उतना worthily करूँगी. The first thing she decided to do was to find out about what makes plants grow well and how she could tend to the plant well. She watered the plants every day and kept changing its position so that it could get ample sunlight. She collected some beautiful colored pebbles and dropped them into the mud. The plant grew. It caught everyone's attention as it bloomed in the glass jar on the windowsill. So अब शैली ने उसकी केयर करना शुरू कर दिया. वो उसको एवरीडे वाटर करती थी एंड उसकी पोजीशन चेंज करती थी, उसको सनलाइट में भी रखती थी. और शी कलेक्टेड सम पेबल्स, कलरफुल पेबल्स, एंड शी ड्रॉप्ड देम इनटू द जार. वो कुछ कलरफुल पेबल्स कलेक्ट करती थी और वो उस जार में डाल देती थी. अब क्या होता है, जो प्लांट था वो ग्रो करने लगता है. वन डे एज द क्लास वॉज गोइंग ऑन, द प्रिंसिपल वॉकड इन. शी एक्नॉलेज्ड the greeting of the student and walked around the class. She saw the plant green and well kept. She could not help but admired it. अब एक बार क्या होता है, प्रिंसिपल वहाँ से गुजरती हैं तो वो क्लासरूम में आती हैं और वो उस प्लांट को देखती हैं. वो शी कुड नॉट हेल्प बट एडमायर्ड. वो वो उस प्लांट को देखकर उसकी तारीफ करती है. शैली हैज़ बीन टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ द प्लांट, सेड द टीचर. फिर टीचर बोलती हैं कि शैली ने प्लांट की काफ़ी अच्छी केयर की है. और शैली माय डियर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद दिस वन, सेड द प्रिंसिपल. आई थिंक दिस क्लास डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड. विल एनकरेज देम इन द असेंबली टुमारो. फिर प्रिंसिपल बोलती हैं कि हमें इस क्लास को एनकरेज करना होगा, हम कल इसको असेंबली में एनकरेज करेंगे इस क्लास को. With pleasure, ma'am, said the teacher. As the principal walked out, the teacher congratulated Shelley. Then teacher जो है वो शैली को congratulate करती हैं और बोलती हैं, well done Shelley, dear. I knew you were the one who could nurture the plant well, and you have done it. The entire class stood up and cheered for Shelley. Shelley thought about the promise she had made to herself. She had taken up the challenge of what seemed a task no one wanted. I will make this worthwhile, and she had done just well. शैली ने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो टास्क कंप्लीट करेगी जो उसको चैलेंज मिला था, जो कोई भी नहीं चाहता था कि वो करे. वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी और वो वर्क करेगी. एंड शी हैड डन दैट. और उसने ऐसा किया. सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से आपको क्या नॉलेज मिलती है? स्टूडेंट, इसका वाइज थॉट है आपका, एंड ये वाइज थॉट आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे. द वाइज थॉट इज हार्डशिप्स ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी. मीन जो हार्डशिप्स है वो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए प्रिपेयर करती है. ओके, एंड लुक at page number 28, there are some important thoughts. Not get bogged down or get upset when I face a challenging situation. हमें कभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन देख करके अपसेट नहीं होना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए. अंडरस्टैंड दैट हाउ आई चूज टू रिएक्ट टू द डिफिकल्टी इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट. कनेक्ट विथ पीपल टू वर्क ऑन एंड वर्क आउट द चैलेंज. ट्राई टू स्टे cheerful and keep going. The lesson is complete now.